वो एंजॉय नहीं कर पाएगा सामने वाला, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस आर हाई। बट रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, यहाँ पर किसी को इम्प्रेस करने का कोशिश नहीं है, यहाँ पर एक सर्विस है ये। आई विल ट्राई टू शेयर वट एवर आई हैव लर्न in the course of 4 years which I have spent in Bhopal base. Okay, so let me figure out how to share the PPT first, then I'll start. Okay. Okay, so am I visible to all of you? Yes, you can respond on their behalf. Yes, but it is taking a little bit time. Surely we will. Okay, is it lagging? Is that what you're taking saying? A little bit time. Maybe there is network issue or something. Network is all right here. I don't know what is taking so long. Okay, is it visible now? Yes. I think I'm also having less network issue. Let's ask from others. You can write in the chat box if the screen is visible to you, all of you. Okay, is audio clear? Am I audible to them? Yes. Can you tell me? Yes, now screen is visible. Your audio is, little bit less. I don't know. Okay, means the screen cover is all right. Okay, I mean my face is visible. Now Okay. screen is visible. So can I start now? Yes, Prabhu, definitely. You can. Okay. So very good evening to all of you. Hare Krishna. I'm very happy to be here, and I'm very happy that Yash has given me this opportunity to share whatever I've learned, and I'll try my best. Uh, uh, in the course of 4 years that I spent in Bhopal, I've tried to understand philosophy at my level best, and whatever I have learned, I will try to make it comprehensible for you all too. Okay, so before we start, one thing that I want to mention here is that this is not just a course. Okay, obviously it is a course, but it is not just a course. What is important here is through this course, you are actually learning the philosophy, the most ancient philosophy that is available on this planet at the moment. Like, you people must be aware of this fact that Vedas are the most ancient scriptures. Even science agrees to that. Vedas are the most ancient scriptures. So by reference, we can deduce that the philosophy given in those Vedas must be ancient too, right? So we are trying to learn through this course, we are trying to learn the most ancient wisdom that is available on this planet at the moment. And you people should notice one thing, that anything stands the test of time. Anything can sustain its existence over a long period of time only and only when it is really profound and it has great amount of quality. For example, anything like movies, say movie is a way of entertainment. It is a means of entertainment. Okay, it started somewhere in the beginning of 20th century, or even before that. I'm not sure about it. Anyway, that's not the point. But what the point I'm trying to make here is that movies are the means of entertainment, and ever since they were discovered, ever since we found out about them, ever since we came to know about them, their existence is available at the moment, and it will continue to be existing even in the years that are going to come. Why? Because movie is a very great source of entertainment for people. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मूवी ही एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, ऐसे कई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट इस दुनिया में आए और गायब हो गए। क्यों?
क्योंकि उनमें वो एबिलिटी नहीं थी एंटरटेन करने के लोगों को. तो what this goes to show that yes, movie is a very strong source of entertainment which can actually entertain people for a very long time. इसीलिए वो अभी भी है, जब से आया, और अभी बहुत आगे तक रहेगा. हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन के किस तरीके से नए नए एडवांसमेंट हो रहे हैं इन द फील्ड ऑफ थिएटर एंड एवरीथिंग. सिमिलरली, जो फिलॉसफी हमको वेदा से मिली है, वो सोचिए कितनी एंशियंट है, वो अभी तक एग्जिस्ट कर रही है और आगे भी करेगी. इसका मतलब है कि वो कितनी प्रोफाउंड रही होगी, कितनी मजबूत रही होगी अपने आप में, कितनी हेल्पफुल रही होगी लोगों के लिए. इसलिए तो अभी तक लोग उसको यूज कर रहे हैं, इसलिए तो अभी तक वो एग्जिस्टेंस में है. अगर इतनी यूजफुल नहीं होती तब तो कब का खत्म हो गई होती, है ना. सो through this course we are trying to learn the very same very ancient philosophy that was given to us, which existed even before, but yes, through Vedas it came in the written form. तो थोड़ा सा और समझते हैं इसको. फिलॉसफी एक्चुअली जो वर्ड है, फिलॉसफी जो वर्ड है, हम सुनते हैं, बहुत सुनते हैं. इसको अगर आप देखें तो इसको हिंदी में दर्शन बोलते हैं, दर्शन, है ना. अगर और अच्छे से समझना चाहें इसको, तो जब आप किसी यात्रा को तय करना शुरू करें, तो सड़क में चलने के लिए आपको, हेलो, is there any problem? I heard someone speaking something. Yes, can I continue, or is there any problem? No, everything is, everything we can accessible. We can see screen, we can hear you. You can continue. Okay, no problem. Okay. So where was I? Yeah. हाँ, मैं फिलॉसफी के बारे में बता रहा था आपको. फिलॉसफी को अगर आप हिंदी में देखें तो उसको बोलते हैं दर्शन. सड़क में चलने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आंखें. बिना आंखों के आप चल नहीं सकते. चल सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन आप भिड़ जाएंगे, कहीं गिर जाएंगे. आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच नहीं पाएंगे अगर आपके पास आंखें नहीं है तो. सही कह रहा हूँ कि नहीं मैं? इसी तरीके से अगर जीवन एक यात्रा है, इफ लाइफ इज अ जर्नी, बोलते हैं ना कि लाइफ इज अ जर्नी फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट डी, है ना. लाइफ इज अ जर्नी फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट डी. बी स्टैंड्स फॉर बर्थ एंड डी स्टैंड्स फॉर डेथ. तो बी और डी के बीच में ये जो यात्रा है, इसी को लाइफ बोलते हैं. तो अगर इस जर्नी को हमको तय करना है, तो इसके लिए ये आंखें बस काम नहीं करेंगी. ये आंखें तो हमको दुनिया दिखा देती हैं कि ठीक है, ये नॉर्मल सड़क में चलने के लिए हमको काम आएंगे. लेकिन जो जीवन की यात्रा है, उसके लिए जो हमको नेत्र चाहिए, वो हमको दर्शन में मिलते हैं, वो हमको फिलॉसफी में मिलते हैं. इसीलिए अगर जीवन जीना है, तो जीवन जीने के लिए हमको एक परफेक्ट फिलॉसफी हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम अच्छे से जी पाएंगे इस जीवन को. फिलॉसफी हमको क्या बताती है कि हमको जाना कहाँ है, हमको किस रास्ते से जाना है, हमको कैसे जाना है. ये सब चीजें अगर हमको पता होंगी, किसी के पास अगर एक अच्छा मैप है, एक अच्छा गाइड है, एक अच्छा रास्ता बताने वाला है, तो वो बहुत कम समय पे बहुत आसानी से पहुंच जाएगा. वहीं पर इन सभी चीजों के अभाव में क्या होगा, रास्ता भटक सकते हैं. पता चला हम कभी पहुंचे ही नहीं वहां तक, बीच में ही चीजें खत्म हो. तो इसीलिए फिलॉसफी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस जर्नी ऑफ लाइफ सक्सेसफुली. And we have the most ancient philosophy, most profound philosophy, which is being given to you, which is being served to you through this course. Understood? So uh, setting in place the importance of this course, I would like to move further. Abhi, I would like to ask you people a question. You people have been attending all these sessions. I think 4 sessions are already over. 4 sessions आप लोगों के already हो गए हैं इस course के. तो by now I expect you people to know at least the name of this course. तो कोई मुझे बताएगा कि इस कोर्स का नाम क्या है? Anyone can unmute themselves and tell me what is the name of this course, whoever wants to say. Anyone, what is the name of this course? Very simple question. You people have been attending it like for 4-5 days. You should be able to know. What is the name of this course? Anyone out there?
Discover yourself. Okay, okay. I was not able to see the chat box. Now I can see. Discover yourself. Raghav, Prakash, Prashant, Sonaki, Shivani, Raghuvanshi. Okay, okay. Very nice, very nice. You people all know. Very nice, very nice. Thank you very much. Thank you very much for responding. So, discover yourself is the name of this course. All right. Now, a question should come कि why should I discover myself? अच्छी खासा जीवन तो हमारा चल ही रहा था ना प्रभु जी। सुबह उठ रहे थे, रात को सो रहे थे, खाना खा रहे थे, मस्त कभी कभी गाने सुन लेते थे, मूवी दिखाते थे, स्कूल स्कूल भी चल ही रहा था, काम धंधा चल रहा था, लाइफ तो चल ही रही थी। सो ऑल ऑफ अ सडन ये क्या, ये नीड क्यों है हमको? व्हाई शुड आई डिस्कवर माई सेल्फ? इफ एनी हैज द आंसर टू दिस क्वेश्चन कि सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ठीक है आपको पढ़ाया जा रहा है डिस्कवर योरसेल्फ, अपने आप को खोजो, लेकिन क्यों खोजें अपने आप को? हम पहला क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाई शुड आई डिस्कवर माई सेल्फ? Anyone who can write. I'm looking at the chat box here. प्रभु जी, एक जिज्ञासा जगी मंदिर जाने के बाद। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस आंसर। आपको जानने का मन हुआ कि मैं हूं कौन। लेकिन ये बताइए कि ये जान के होगा क्या? ये मनीष दीवान लिख रहे हैं, बहुत ही अच्छा आपका आंसर है। लेकिन आप मेरे को क्या ये बता सकते हैं कि आखिर जान के होगा क्या? मान लीजिए जान भी लिया तो उससे होगा क्या? वेरी नाइस। वो लिख रहे हैं, दीप्ति द्विवेदी लिख रही हैं, सो दैट वी कैन लिव इन मोर इफेक्टिव वे। वेरी नाइस आंसर, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। एनीवे, स्टिल आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। मैं मार्केट में था, मुझे पता नहीं है कि घर में क्या हो रहा है। मैं एक इमेजिन करिए एक सिचुएशन, मैं मार्केट में हूँ, मुझे पता नहीं है घर में क्या हो रहा है। ऑल ऑफ अ सडन पिताजी का फोन आता है, माय डैड कॉल्स मी, और वो बोलते हैं कि बेटा घर में गेस्ट आए हुए हैं, तो कपड़े की दुकान, मार्केट में हो तो कपड़े की दुकान से कुछ लेते आना, जाते समय उनको दे देंगे, उनको अच्छा लगेगा। एंड माय पापा, बीइंग माय पापा, ही हैंग्स अप द फोन विदाउट टेलिंग मी हु इज द गेस्ट. Now I'm trying to call him again to ask that who the guest is, so that accordingly I can buy things, but he's not picking up. Now I have to work on my own discretion. So I finally made a call. मैंने finally decide किया कि ठीक है, एक बनारसी साड़ी ले आते हैं, क्या करेंगे, और अभी तो पता है नहीं अपने को कौन है गेस्ट। तो मैं एक बनारसी साड़ी लेके जैसे ही मैं घर में पहुंचा तो वहां एक 60 साल के अंकल बैठे हुए थे। नाउ अभी देखिए, मेरे उस गिफ्ट को खरीदने का पर्पस क्या था? जो गेस्ट आए हैं उनको खुश करना। लेकिन ये जो बनारसी साड़ी मैं लेके आया हूँ, क्या इससे अंकल खुश होंगे? वो 60 साल के अंकल खुश होंगे? नहीं होंगे। इस उदाहरण से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, इसको समझने का प्रयास करिएगा कि मेरा पर्पस था अंकल को खुश कर, गेस्ट को खुश करना, लेकिन चूंकि मुझे पता ही नहीं था कि अंकल कौन है, इसलिए मैं उनको खुश कर ही नहीं पाया, मैं गलत चीज उठा के ले आया। कहने का मतलब ये है कि अगर हमको किसी को खुश करना है, किसी को भी खुश करना है, तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो है कौन, उसकी आइडेंटिटी क्या है ना? अभी देखिए, इस दुनिया में हर इंसान जो कुछ भी कर रहा है वो अल्टीमेटली खुश होने के लिए ही कर रहा है। अगर कोई बाय द वे सोशल सर्वेंट भी है, जो सोशल सर्विस कर रहा है, तो ऊपर से ऐसा लग सकता है कि उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो सेल्फलेस हैं, उसको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लोगों को हेल्प करके उसको खुशी मिल रही है ना। तो इवन अ सोशल सर्वेंट जो कि समाज सेवा कर रहा है, वो भी जो कर रहा है वो खुशी के लिए ही कर रहा है, वो खुश होने के लिए कर रहा है। जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस इसलिए कर रहा है ताकि अच्छे पैसे आए, पैसे आने से उसको खुशी मिलेगी। स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ताकि पढ़ने के बाद एक अच्छी नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलने से खुशी मिलेगी। मम्मी घर में खाना बना रही है ताकि खाना खाएंगे बच्चे तो खुश होंगे, तो उसको खुशी मिलेगी। कहने का मतलब ये है, इन द बॉटम ऑफ ऑल अवर एक्टिविटीज, irrespective of what they are, no matter what we are doing, the intention before the activity always remains the same, that we want happiness, we want happiness out of it. Getting my point? अभी देखिए, हमने जैसे उस उदाहरण से समझा कि हमको किसी को खुश करना है, तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि वो है कौन, नहीं तो मेरे जैसे आप हरकत कर दोगे। सिमिलरली, अगर हमको अपने आप को खुश करना है, जो कि हम करना ही चाह रहे हैं इस दुनिया में, अगर हमको अपने आप को खुश करना है, तो हमको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि हैं हम कौन। इसलिए ये आपको डिस्कवर योरसेल्फ का कोर्स कराया जा रहा है। जिंदगी वैसे भी चल रही थी, इस दुनिया में लोग खुश होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हो क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास ये विजडम नहीं है, उनको ये एक्चुअली में पता नहीं है कि वो हैं कौन। दैट इज वाई
दिस कोर्स, थ्रू दिस कोर्स, द फर्स्ट सेशन जो आपने अटेंड किया था, पहला सेशन आपका जो था, मतलब पहला लेक्चर नहीं, पहला डिवाइस सेशन, डिस्कवर योर इनर सेल्फ। ये किसको किसको याद है? ये डिस्कवर योर इनर सेल्फ। हाँ, सुमुख लिख रहे हैं, यस, उनको याद है। तो इसीलिए इसीलिए आपको पहला सेशन ये दिया गया था कि आप हैं कौन, क्योंकि यही की है हैप्पीनेस की। जब तक हमको पता नहीं होगा हम कौन है, तब तक हम अकॉर्डिंगली ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे कि हम अपने आप को खुश कर पाए। हैविंग सेड दैट, आई विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। जैसा कि आपने उस सेशन में समझा था कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। अभी आपने शुरू की है इस्कॉन में जर्नी, आप जब तक इस्कॉन में रहेंगे आपको किसी हर लेक्चर में ये सेंटेंस सुनने मिलेगा ही। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। आप देखेंगे भारत में रहने का एक फायदा तो होता है कि लोगों को चीजें पता चल जाती हैं बिना जाने ही। आप देखेंगे कि हाँ हाँ हमको आत्मा के बारे में पता है, ओ आई नो अबाउट इट। हाँ हाँ, तुम क्या बताओगे हमको आत्मा के बारे में? एक्चुअली देयर आर 3 लेवल्स ऑफ नॉलेज, है ना। सबसे पहले आता है नोइंग, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। सबसे पहले हमको नॉलेज मिलता है ना। तो चूंकि हम भारत में पैदा हुए हैं, बचपन से सुनते सुनते, कई दादाजी ने बोला, कई नाना जी ने बोला, कोई किसी सीरियल में देख लिया हमने, हमको ये तो पता चल जाता है कि आत्मा होती है। हम बोलने भी लगते हैं कि आत्मा है, आत्मा है। लेकिन दिस इज कॉल्ड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। हमको यह नॉलेज मिलता है, लेकिन उसके ऊपर जो लेवल आता है उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज। पहले आया एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज। नॉलेज मिलना काफी नहीं है, उसको समझना भी जरूरी है। हम आत्मा है ये बोलने सब लगते हैं, सबको पता चल जाता है, लेकिन सब समझते नहीं है इस बात को। ये हम आगे समझेंगे कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि हम समझते नहीं हैं बात को। अभी देखिए, जब आपको वो सेशन दिया गया था, तो उस सेशन में आत्मा को समझाने के लिए सबसे पहला उदाहरण जो कृष्ण मुकुंद प्रभु ने आप लोगों को दिया था, वो था कार का एग्जाम्पल। एक कार के अंदर जिस तरह एक ड्राइवर होता है, तरीके से इस शरीर के अंदर मैं हूं, जो कि आत्मा है। ठीक है, किसको किसको ये एग्जाम्पल याद है? प्लीज टाइप यस। जागृति गुप्ता द्विवेदी, दीप्ति द्विवेदी, यस यस। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सो उस उदाहरण में आपको समझाया गया था कि जिस तरह से कार के अंदर एक ड्राइवर होता है, उसी तरीके से शरीर के अंदर मैं हूं, जो कि आत्मा है। आपको प्रभु जी ने ये भी समझाया था कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है। अरे हमारे अंदर आत्मा नहीं है भाई, तुम ही आत्मा हो। तो देखिए, जब इस तरह के सेंटेंसेस लोग बोलते हैं ना, हमारे अंदर आत्मा है, हमारी हमारी आत्मा, तो इन सेंटेंसेस से समझ में आता है कि उन्होंने सोल के कॉन्सेप्ट को समझा नहीं है। समझ रहे हैं आप? इसलिए मैं बोल रहा था। एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक एक ड्राइवर था, उसने अपनी कार ली और एक लंबी यात्रा में निकल गया। वो ड्राइविंग कर रहा था। जैसे ही उसको पहला पेट्रोल स्टेशन दिखा, उसने जाके वहां पेट्रोल भरवा लिया अपनी कार में। जब तक पेट्रोल भरा था, तब तक बाहर निकल के बढ़िया से कार को साफ कर लिया, एकदम टायर में हवा भरवा ली, फिर निकल गया। फिर चलने लगा। बहुत कॉन्शियस है वो अपनी कार के बारे में। जैसे ही उसको नेक्स्ट पेट्रोल स्टेशन दिखा, फिर से वहां पर पेट्रोल भरवा लिया उसने। फिर से अपनी कार को साफ किया, फिर से हवा हवा चेक करवा ली कार के टायर्स में, फिर आगे बढ़ा। ऐसे करते 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 जहां उसको पेट्रोल स्टेशन दिखता था, वहां पेट्रोल भरवा लेता था। ही वाज वेरी कॉन्शियस अबाउट हिज कार। ही कुड नॉट स्टैंड इवन ए स्क्रैच ऑन इट। बहुत ही अच्छे से ड्राइव करता था, उसका इंजन बहुत अच्छे शेप में था, क्योंकि बहुत अच्छे से ड्राइव करता था, कोई भी स्क्रैच नहीं था कार में, बहुत अच्छे से ड्राइव करता था। जैसे ही पेट्रोल थोड़ा भी खत्म होता था, फिर से पेट्रोल भरवा लेता था। ऐसा करते 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 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, 24 घंटे हो गए। अभी जब 24 घंटे उसको चलाते चलाते गाड़ी हो गए, पेट्रोल भरवाता रहा वो, तो उसको वीकनेस से फील होने लगी। ही स्टार्टेड फीलिंग वेरी वीक। उसको ड्राइव करने में मजा ही नहीं आ रहा था। कार बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छी स्पीड में चल रही थी, पेट्रोल भी भरा हुआ था, लेकिन उसको अच्छा लगना बंद हो गया। ही स्टार्टेड फीलिंग वीक। वो एंजॉय नहीं कर पा रहा था अपनी जर्नी को। कोई मुझको इस उदाहरण से ये समझ के बताएगा कि ऐसा क्यों हो रहा था। उसकी कार में पेट्रोल फुल है, उसकी कार पूरी साफ है, उसकी कार बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, लेकिन वो फिर भी अपनी जर्नी को एंजॉय क्यों नहीं कर पा रहा था? वो खुश क्यों नहीं था ड्राइवर? कोई बताएगा यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख के?
राघव प्रकाश से कि एक ही कार से बोर हो गया। दीप्ति द्विवेदी, he didn't get rest to himself, very nice। आदित्य, इनर पीस, ओके। आदित्य श्रीवास्तव, आपका उत्तर सही हो सकता है लेकिन और सटीक उत्तर दीजिए। जैसे ऊपर काफी अच्छा उत्तर मिला है कि उसको रेस्ट नहीं मिला खुद के लिए, हैबिट में आ गया था। कह सकते हैं सही है। घर से खा वेरी नाइस। सुबह से घर से खा के नहीं निकला। रिंकू छाबड़े से ही डोंट नो हिज डेस्टिनेशन, ओके। डीप आंसर्स आर कमिंग हियर, ओके ओके। ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग सुन रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, वो थोड़ी थोड़ी देर में पेट्रोल स्टेशन में रुक के अपनी कार में पेट्रोल तो भरवा रहा था, लेकिन पूरी जर्नी में वो कहीं भी रुक के खाना खाना भी भूल गया। किसी रेस्टोरेंट में या किसी छोटे से रोड साइड फूड स्टॉल में उसने खरीद के कुछ खाया ही नहीं। इसलिए नो मैटर उसकी कार में कितना पेट्रोल है, वो कितनी बार उस पेट्रोल को भरवाता है, वो अपनी कार को कितना साफ रखता है, लेकिन अगर वो खुद नहीं खाएगा, कार का ड्राइवर अगर खुद कुछ नहीं खाएगा, तो वो कभी भी एंजॉय नहीं कर पाएगा अपनी जर्नी को। समझ में आया? तो मान लीजिए वो ड्राइवर ऐसा ही करता रहता है, तो क्या आप लोग उसको बेवकूफ नहीं बोलेंगे? अगर वो अपनी कार में पेट्रोल भरवाता रहता है, कार का ध्यान रखता है, लेकिन खुद कुछ नहीं खाता है 7-7 दिन तक अकेले, तो आप उसको क्या बेवकूफ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यस और नो? यू कैन टाइप इट ऑन द चैट बॉक्स। बेवकूफ कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, ओके। तो हम उसको बेवकूफ कहेंगे। अभी हम अपने जीवन में आते हैं, ठीक है। तो हमने समझ लिया था कि जिस तरह कार और ड्राइवर है, वैसे ही शरीर और आत्मा, जो कि मैं हूँ। जैसे कार के अंदर ड्राइवर बैठा था, वैसे ही शरीर के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ। ठीक है, समझ में आ गया प्रभु जी? अब देखिए, अब अपना पूरा दिन आप एनालाइज करना शुरू करिए मेरे साथ। आप सुबह उठते हैं, आप सबसे पहले ब्रश करते हैं, फ्रेशन अप होते हैं और नहाते हैं। किसके लिए करते हैं आप ये? अपने शरीर के लिए, ठीक है। जिस तरह उसने सुबह उठ के कार को साफ किया था, वैसे ही आपने सुबह अपने शरीर को साफ कर लिया। वेरी नाइस। आप ब्रेकफास्ट करते हैं, भोजन शरीर में जाता है, शरीर को एनर्जी देता है। ये ब्रेकफास्ट आपने क्यों किया? शरीर के लिए किया। उसके बाद आप जॉब में जाते हैं, जॉब करने जाते हैं। क्यों आप जॉब करने जाते हैं? ताकि आप उससे पैसा कमा सकें। उस पैसे से आप अपने शरीर के लिए खाना खरीद सकें, भोजन खरीद सकें। उसी पैसे से आप इस शरीर के लिए एक घर बना सकें। उसी पैसे से आप शरीर के लिए एक बेड बना सकें जिसमें आप आराम कर सकें। फिर लंच आता है, आप लंच भी शरीर के लिए करते हैं। आप ऑफिस से आते हैं, डिनर करते हैं, वो भी शरीर के लिए करते हैं। रात में थक के हार के आप सो जाते हैं ताकि शरीर को आराम मिल जाए। तो अब आपको क्या लगता है कि उस ड्राइवर और हम में कोई अंतर है क्या? वो भी शुरू से आखिरी तक अपनी कार पे ही ध्यान देता रह गया, खुद के लिए कुछ खाना भूल गया। इस तरीके से मैं, जो कि आत्मा हूँ, मैं सुबह से शाम तक अपने शरीर के लिए ही काम कर रहा हूँ। शरीर को ही खिला रहा हूँ, शरीर को ही आराम दे रहा हूँ, शरीर को ही सब कुछ कर रहा हूँ। अपने लिए मैंने कुछ किया ही नहीं, तो मैं बेवकूफ नहीं कहलाया क्या? यस या नो लिखिए। उसी ड्राइवर की तरह मैं भी बेवकूफ कहलाया कि नहीं कहलाया? यहाँ मैं मतलब हम अपनी सबकी बात कर रहे हैं, यहाँ मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ। तो व्हेन यू आर राइटिंग, यस यू आर राइटिंग इट फॉर योरसेल्फ। ऑलराइट। तो हमको ये समझ में आ गया कि हम बेवकूफी कर रहे हैं बहुत ज्यादा। हाँ, अभी देखिए, लोग खुश होने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन वो अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। वो बोलते हैं यार सुबह से शाम तक हालत खराब हो गई काम करते करते, लेकिन ये खुशी मिलती नहीं है। नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राई, द कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस रिमेन्स इवेसिव। द सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, द सेंस ऑफ कंटेंटमेंट ऑलवेज रिमेन्स इवेसिव। वी नेवर गेट दैट। व्हाई? अरे भाई, काम तो कर रहे हो लेकिन गलत जगह काम कर रहे हो। देखिए, हम बहुत शिद्दत से खुश होना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर डेडिकेशन नहीं है। इसीलिए आप देखिए, पूरी दुनिया में इतने सारे शहर हैं, कुछ कुछ शहर तो दिन रात चलते रहते हैं। इसका मतलब क्या है? हर एक इंसान दिन रात खुश होने का प्रयास कर रहा है। फिर भी आप देखें, किसी भी एक इंसान को आप पूछेंगे कि भाई अच्छे से खुश हो, तो वो अगर जेन्युइनली आंसर करेगा तो उत्तर नहीं दे पाएगा हाँ में। ऐसा क्यों है? इतने, देखिए, आप अगर कभी बहुत बहुत शिद्दत से मेहनत करिए किसी चीज के लिए और आपको फिर भी ना मिले, तो ये समझ जाना चाहिए कि मैं गलत जगह मेहनत कर रहा हूँ। इट्स लाइक दिन रात आप अगर दीवार को धक्का दे रहे हैं और वो नहीं मूव हो रही है, इसका मतलब क्या है कि आप गलत जगह धक्का दे रहे हैं। तो डिस्पाइट आवर कंटिन्यूअस एंडलेस एफर्ट्स, इफ वी आर नॉट फाइंडिंग हैप्पीनेस, इसका मतलब है कि कहीं हमारी बेसिक अप्रोच में प्रॉब्लम है। वो बेसिक अप्रोच यही थी
हम अपने शरीर के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो शरीर तो हमारा अच्छी अवस्था में है, देखिए चेहरे खिलखिलाते हुए मैं देख तो नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग सब बहुत सुंदर दिख रहे होंगे, सबके शरीर एकदम परफेक्ट शेप में होंगे, लेकिन वो सेंस ऑफ हैप्पीनेस इज स्टिल इमेजिंग बिकॉज हमने अपने लिए कुछ किया ही नहीं अभी तक। तो हैविंग सेड ऑल दैट, एक और कॉन्सेप्ट में रखना चाहूंगा, उसके बाद हम अपनी स्लाइड्स के साथ शुरू करेंगे अपना ये कार्यक्रम। जैसे देखिए शरीर किससे मिलके बना है, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, अर्थ एयर वाटर फायर ईथर, इन सब चीजों से मिलके हमारा शरीर बना हुआ है। जो शरीर है वो मैटर से बना हुआ है। ये जो मैंने बताया एयर, फायर, ईथर, अर्थ, ये सब मैटर है। मैटर मतलब जो नॉन लिविंग है, जिनमें जीवन नहीं है। तो नॉन लिविंग चीजों से बना हुआ शरीर है, मैटर से बना हुआ शरीर है ये। तो मैटर का भोजन हमेशा मैटर होता है। ये ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ थोड़ा ध्यान सुनिएगा। ये जितना मैंने आपको कहानी अभी तक बताई है उसको इसलिए बताई है मैंने ताकि आपको ये समझा सकूं। तो ये जो शरीर है ये मैटर है, और मैटर का भोजन मैटर होता है। मैटर मतलब जैसे इस शरीर का भोजन क्या है, गेहूं, दाल, चावल, ये सब नॉन लिविंग वस्तुएं हैं, ये मैटर है ना। तो ये मैटर का भोजन मैटर होता है हमेशा, मैटर का भोजन हमेशा मटेरियल होगा। इसी तरीके से जो आत्मा है मतलब हम स्पिरिट हैं, और स्पिरिट का भोजन हमेशा स्पिरिचुअल होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? स्पिरिट का भोजन हमेशा स्पिरिचुअल होता है। इसीलिए हमारा शरीर के लिए अगर हमको इसको खुश रखना है तो हमको मैटर लेना पड़ेगा, जो कि हम ऑलरेडी ले रहे हैं। लेकिन अगर हमको अपने आप को खुश करना है, स्पिरिट को खुश करना है, आत्मा को खुश करना है, तो हमारा भोजन आध्यात्मिक होना चाहिए। आत्मा का भोजन हमेशा आध्यात्मिक होगा, स्पिरिट का भोजन हमेशा स्पिरिचुअल होगा। और जो शरीर है जो कि भौतिक है, इसका भोजन भौतिक होगा, जो कि दाल चावल जो हम खाते हैं रोज। ठीक है, इतनी ये बात सब कुछ यहाँ तक सबको क्लियर है? प्लीज टाइप यस इफ आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर। अगर जो मैंने समझाया वो अभी तक आपको समझ में आ गया तो प्लीज टाइप यस, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ऐसी कोई भी चीज जो अभी तक ना समझ में आई हो तो आप पूछ लीजिए, अभी अभी क्लियर कर दूंगा, क्योंकि ये इसके बाद पूरा बेस उसके ऊपर ही है। ओके, दीप्ति द्विवेदी said yes, आदित्य श्रीवास्तव yes very well, रिंकू छापरे said yes, जागृति गुप्ता said yes, okay okay, all right, so I hope I have got my point across and everything is clear till here, all right। तो आज का जो आपका ये सेशन है, पांचवा सेशन है, इसमें हम यही बात करेंगे कि आपके आत्मा का भोजन क्या है। हम अपने शरीर का भोजन तो जानते हैं, लेकिन चूंकि हमको अपने आप को खुश करना है, आत्मा को प्रसन्न करना है, इसके लिए हमको आध्यात्मिक भोजन चाहिए। तो आध्यात्मिक भोजन क्या है वो आज आपको बताया जाएगा। इस सेशन में हम आपको आध्यात्मिक भोजन वो आपका क्या है वो बताएंगे, इसीलिए लास्ट तक सेशन में रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, नहीं तो हम कितना भी प्रयास करते रहे खुश होने का, हम कभी खुश नहीं होंगे जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि हमारा आध्यात्मिक भोजन क्या है, और वो हम आज पता करें। ठीक है, ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्लाइड्स। All right. So discover sublime joy through sound. तो हम आज ये पता करेंगे कि ध्वनि के माध्यम से what happened to it. I'm sorry, it is kind of hanged. I don't know why. Yes, can you share from your side because mine is not moving forward. Yes, are you there? Okay, okay, it's working now. So we are going to discover the sublime joy through sound. तो हम आज ये जानने का प्रयास करेंगे कि साउंड जो ध्वनि होती है इसके थ्रू हम कैसे सबलाइन जॉय
डिस्कवर कर सकते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। फील द इनर पीस एंड जॉय, discover sublime joy through sound. So in the course of I think 1 hour or so, we will try to, I'll take you through these points. Power of sound, first we will discover the power of sounds, what is it, then we will see the scriptural references that we have about it. Next we will move to scientific research and about scientific research about chanting that we have, and at last we will discuss the benefits of chanting Maha Mantra. All right. Power of sound vibration is the first thing that we are going to take up. Power of sound vibration, ठीक है. See, this is no secret that sound has power. हम सब ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है ना. अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट विद द स्लाइड्स, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि इस दुनिया का सबसे पहला डिवाइस कब हुआ था? ये तो आप लोग आज मतलब कि अभी आप लोगों ने शुरू करना किया है आप लोगों ने डिवाइस अटेंड, लेकिन पहला डिवाइस कब हुआ था? आप लोग कर सकते हैं क्या गेस? अगर आप लोग के पास आंसर तो लिखिए आप चैट बॉक्स में. आदित्य श्रीवास्तव ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है कि 3 लेवल्स ऑफ नॉलेज में मतलब तीन लेवल्स ऑफ नॉलेज नहीं है, प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज में 3 लेवल्स होते हैं. तो पहला एक्विजिशन ऑफ नॉलेज है, दूसरा अंडरस्टैंडिंग मतलब पता करना, नॉलेज गेन करना. सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज, नॉलेज को समझना. तीसरा इज रियलाइजेशन ऑफ नॉलेज. समझना बस काफी नहीं है, उसको रियलाइज करना पड़ता है. तो अभी मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो फ्यूचर स्लाइड्स में आपको बताया जाएगा. थर्ड इज द रियलाइजेशन ऑफ नॉलेज. ठीक है, यहाँ पर बहुत लोग लिखते हैं महाभारत. कैसे कह सकते हैं कि महाभारत में पहला डिवाइस हुआ था? कुरुक्षेत्र में कृष्ण. वेरी नाइस, वेरी नाइस. दीप्ति द्विवेदी is giving very nice answers. She said that Krishna gave first device was given to Arjuna by Krishna. Very nice. क्यों? क्योंकि पहली बार भगवान ने अर्जुन को आत्मा के बारे में बताया था. आत्मा का नॉलेज पहले भी था, लेकिन पहला ऑर्गेनाइज सेशन में 1-to-1 कॉन्वर्सेशन में जो रिटन फॉर्म में हमारे पास डिवाइस सेशन है वो है महाभारत में, कुरुक्षेत्र में. वेरी नाइस आंसर. ओके, नो प्रॉब्लम, we'll move forward. So power of sound vibration. Sound has power undoubtedly. See, sound has so much power that it can alter the inner atmosphere of ours, है ना. साउंड के थ्रू आप किसी भी इंसान की सोच बदल सकते हो, किसी इंसान के अंदर क्या इमोशंस आ रहे हैं उनको ऑल्टर कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, हम लोग सैड सॉन्ग सुनते हैं तो सैड हो जाते हैं, राइट. हम लोग रोमांटिक सॉन्ग सुनते हैं तो लगता है यार कोई मिल जाए लाइफ में, है ना. हम लोग जोशीले सॉन्ग सुनते हैं जब भी कभी आप डिमोटिवेटेड होते हैं, तो जैसे कई सारे सॉन्ग्स हैं हमारे बॉलीवुड में, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, तो उनको सुनते हैं तो हम मोटिवेट हो जाते हैं एकदम से. जैसे इंग्लिश में एक बहुत अच्छा सॉन्ग है हॉल ऑफ फेम. अगर आप लोग कभी भी डिमोटिवेट हो बहुत ज्यादा तो हॉल ऑफ फेम सुनिएगा. इट इज अ वेरी मोटिवेटिंग सॉन्ग, है ना. आप अंदर से आग लगा देगा एकदम. और मतलब कहने का मतलब ये है, साउंड हैज द पावर टू चेंज द इनर एटमॉस्फेयर दैट इज विद इन अस. हमारे इंटरनल इमोशंस, हमारे इंटरनल इमोशंस और हमारा मोटिवेशन, एवरीथिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय साउंड वाइब्रेशन. जैसे एग्जांपल आपको देते हैं.
I'm sorry, I'm really sorry for all this. I don't know why the slides are not moving forward. All right, let's move forward like this only. So power of sound vibration. Yes, can you confirm if the slides are moving? Yes, can you hear me? Anyone of you can confirm if the slides are moving? Excuse me, are you all there? Yes. Okay. Okay. So just in case, I'll not ask you people again, just in case it is stop sharing the screen, and then let me know. Okay. Anyone of you can unmute and tell me. All right. Now we'll move fast forward because we don't have much time. All right. Like here you see the sound vibration has the power to create revolution. Revolution, do you understand what is the meaning of revolution? I tell you, revolution means a sudden change. Anything change very drastically. For example, there was Russian Revolution in I guess 1907 or so. In the very beginning of 20th century, there was Russian Revolution where monarchy was completely altered and communism came in power. You know? Like we have heard of French Revolution. So these revolutions, you will find one common thing in all the revolutions that we have seen in the history, that every revolution had a wonderful speaker at the center of it. है ना? बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट्स हुई हैं. फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में कितनी इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुई, अमेरिका में भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुई. जैसे आप यहाँ पर जो एक फोटो देख रहे हैं, ये है मार्टिन लूथर किंग जूनियर की. ये थे वहां पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, वहां पर फॉर इक्वल राइट्स, वहां पर डिस्क्रिमिनेशन होता था ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में, इसलिए ही वाज द की फिगर ऑफ दैट मूवमेंट that took place in America, and he was a wonderful speaker. He had the ability to move people to tears. When he would speak, people in the audience would cry like anything. So this is the power of speech. Simply by standing on a podium and speaking through a mic, you can actually move people to tears. You can alter their emotions. You can change the way they think. If you type on YouTube Martin Luther King Jr., you will come across a speech of his, which is very famous. I have a dream. The name of that speech is I have a dream. And he says in that dream, I have a dream that my 4 children will one day live in a nation in which they will not be judged by the skin of their color, but by the content of their character. आप समझ रहे हैं कि बैकग्राउंड क्या था उस मूवमेंट का. वहां पर ब्लैक और व्हाइट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ब्लेटेंट डिस्क्रिमिनेशन, खुलेआम जिसको बोलते हैं. तो इन द लाइट ऑफ दैट ही सेड दीज लाइंस कि मैं आशा करता हूँ, मेरा एक सपना है कि ये एक ऐसा देश बन जाएगा जहां पर मेरे 4 जो ब्लैक बच्चे हैं वो उनके रंग से नहीं जज किए जाएंगे, वो उनके कंटेंट ऑफ कैरेक्टर, उनका कैरेक्टर कितने स्ट्रॉन्ग है इस चीज से जज किए जाएंगे. सो इफ यू विल लिसन टू दैट स्पीच, यू विल कम टू नो व्हाट अ वंडरफुल स्पीकर ही वाज. सो कहने की बात ये है कि थ्रू साउंड our emotions can be altered, we can be motivated, we can be demotivated also. So basically the sound vibration had tremendous power, and if they are utilized properly, they can do wonders, and if they are utilized negatively, then they can be horrible. For example, in Germany, you see Nazi Germany, there was Hitler, and Hitler was one of the greatest orators that the earth has ever had. मतलब आप सोचिए कि उसने
मास किलिंग जेनोसाइड जिसको बोलते हैं, एक बड़े कम्युनिटी को कंप्लीटली खत्म कर दें, इस चीज के लिए कन्विंस कर लिया था कई लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वहां पर अलग अलग रेसेस हैं, ऐसे इंडिया में भी अलग अलग रिलीजन है, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट भी होता है, लेकिन कोई भी इंसान किसी और को बिल्कुल खत्म करने का नहीं सोच सकता है। But he was such a great speaker that he had convinced the Nazi people for genocide of Jewish people. How you see the magic of words and the power of words. All right, moving forward, there had been case studies. Case studies हमने बहुत conduct कराई हैं, जिसमें हमने देखा है कि what is the power of sound. You see, if you go to a garden and there is a plant and you start cursing it daily, you go to it and you curse it daily, आप उसको भला बुरा कहो जाके, उसको गालियां दो, अपने आप वो पेड़ सूख जाएगा. On the contrary, if you play good music around that plant and you go and talk to it in a very nice way, then it has been found that the growth of that plant was much higher than the other one, which उसकी तो growth ही नहीं हुई, वो बेचारा खत्म ही हो गया. So this was the case study that found it. Similarly, this that you see is a water crystal, is a microscopic view of a water crystal. But when the same water crystal was exposed to Sanskrit mantras, mantra actually sound जो भी हम बोलते हैं वो sound है. So when Sanskrit mantras, this crystal was exposed to Sanskrit mantras, it was found that this crystal took the shape of a very symmetrical structure. You see, this is the power of sound. Moving forward, now we come to a slide where we see what is mantra. हम बचपन से बहुत सुनते हैं कि मंत्र मंत्र मंत्र, लेकिन वास्तव में मंत्र होता क्या है? तो हमेशा याद रखिए कि किसी भी शब्द का मतलब हमेशा उसके अंदर छुपा होता है, जिसको हम बोलते हैं, अगर किसी भी शब्द को तोड़ के देखें ना, हमको उसका मतलब समझ में जाएगा. देखिए, जैसे यहाँ पर मंत्र जो वर्ड है वो दो वर्ड से बना हुआ है, मन और त्र. मन का मतलब होता है माइंड, वी ऑल नो दैट, और त्र का मतलब होता है समथिंग दैट डिलीवर्स. तारना, एक जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, तारना, तारना एक हिंदी में वर्ड है. तो त्र, फ्रॉम देयर वी कैन कंक्लूड दैट त्र मीन्स टू डिलीवर. तो मंत्र वो चीज है जो कि हमारे माइंड को डिलीवर कर देती है, हमको हमारे माइंड को फ्री कर देती है किसी से, एंजाइटी से, टेंशन से, बुरे थॉट से. देखिए, जो लोग मंत्र उच्चारण करते हैं, जो कि ट्रेडिशनल हमारा सिस्टम ही बना रहा है, वी चैंट मंत्रास, तो जो मंत्र का उच्चारण करते हैं उनका मन कम भटकता है ना, वो शांत रहते हैं, उनको एंजाइटी कम होती है. क्यों? क्योंकि मंत्र का ये फंक्शन ही है कि वो हमारे माइंड को डिलीवर कर देता है, वो हमारे माइंड को तार देता है, हमारे माइंड को फ्री अप कर देता है इन सब चीजों से, ऑल द अनवांटेड थिंग्स that are there. It frees your mind from all that. That is why mantra meditation is something that we practice in ISKCON, है ना. आपने मेडिटेशन सुना होगा, मेडिटेशन के नाम पे आपने हमेशा ये सुना होगा कि ओके, सिट डाउन क्वाइटली एंड देन एक डॉट बना लो आपके एक पेज पे और उसको देखो खूब देर तक. हम सब ने प्रयास किया, लेकिन हम सब सफल नहीं हुए हैं. इसीलिए मंत्र मेडिटेशन इज वेरी इफेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी पॉइंट पे नहीं फोकस करना होता है, किसी एक बिंदु पे फोकस नहीं करना है. मंत्र मेडिटेशन में आप मंत्र बोलते हो और आप उसी साउंड वाइब्रेशन पे फोकस करते हो. दिस इज कॉल्ड मंत्र मेडिटेशन. जैसे आप वहां पर एक बिंदु पे फोकस करते थे, मंत्र मेडिटेशन में आप मंत्र पे फोकस करते हो, मंत्र का जो साउंड आप निकालते हो उसी पे आप फोकस करते हो. तो जप जो हम करते हैं, जिस फॉर्म में जो सिस्टम है जप का, वो मंत्र मेडिटेशन में, पर्सनल मेडिटेशन में आता है. पर्सनल, जब आप अकेले बैठ के पर्सनल रूम में अकेले बैठ के आप मंत्र का उच्चारण करते हो और उसी पे मेडिटेट करते हो, उसको बोलते हैं पर्सनल मेडिटेशन. उसके बाद आता है संकीर्तन, जब कई सारे लोग मिल के कमरे में या फिर नगर की सड़कों में ढोल बजा के और मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो उसको संकीर्तन बोलते हैं. आफ्टर कंप्लीटिंग दैट वी विल कम टू स्क्रिप्चुरल रेफरेंसेस, है ना. आखिर स्क्रिप्चर्स में हमारे क्या लिखा हुआ है. रिकमेंडेड प्रोसेस फॉर सेल्फ रियलाइजेशन. देखिए, ये आप लोगों को पता ही होगा, आप सब बहुत इंटेलिजेंट है, मैं देख रहा था आप लोगों के जो आंसर्स आ रहे थे चैट बॉक्स में, मैं उससे समझ पा रहा था कि आप लोगों का लेवल ऑलरेडी बहुत हाई है. स्टिल, फॉर द सेक ऑफ दिस स्लाइड, आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब से क्रिएशन, सिंस द डॉन ऑफ क्रिएशन till the end of creation, the time has been divided in 4 quarters. There are 4 parts in which the time has been divided. The time span of the creation has been divided, and the first is Satyuga, the second is Treta Yuga,
द फोर्थ इज द्वापर युग एंड द फिफ्थ इज कलयुग दैट इज रनिंग करंटली। देखिए, हर परिस्थिति के अनुसार तरीके अलग होते हैं। जैसे एक स्कूल में हर बच्चे के साथ डील करने का तरीका टीचर का अलग होता है। वो डिपेंड करता है कि उस बच्चे का लेवल क्या है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है ना, वो कितना समझ सकता है, कितना नहीं समझ सकता है ना। तो परिस्थितियों के अनुसार नियम बनाए जाते हैं, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जो सतयुग था, सतयुग वाज कंपैरेटिवली, मतलब इट वाज द क्रिएशन वाज इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, है ना। आप उसी, दिस इज द बिगनिंग इन द सतयुग कम्स इन द बिगनिंग ऑफ क्रिएशन। तो जब गंगा हिमालय से निकलती है तो कितनी प्योर रहती है, यू कैन अंडरस्टैंड, है ना। तो उस प्योरिटी में जो प्रोसेस, तो उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए जो सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोसेस बताया गया, वो था मेडिटेशन ऑन सुपर सोल। आपने देखा होगा, आपने स्टोरी सुनी होंगी हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप की स्टोरी सुनी होगी आपने, जिसमें उसने बहुत तपस्या की थी, फिर उसको काफी वरदान मिले थे। उसी तरह से आपने सुना होगा ध्रुव, ध्रुव का एग्जाम्पल सुना होगा। उनकी ध्रुव की सौतेली माँ ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया, तो उनकी अपनी माँ ने बोला कि अगर तुमको वास्तव में खुशी चाहिए तो भगवान विष्णु के पास जाओ। तो वो छोटी सी उम्र में ही निकल गए थे, उन्होंने तपस्या की थी, फिर उन्होंने भगवान की प्राप्त, ईश्वर की प्राप्ति की थी। तो दिस वॉज द प्रोसेस ऑफ सतयुग। लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे बुराइयां बढ़ गई दुनिया में, तो हमको चेंज करना पड़ा। अभी ऐसी स्थिति है ना कि आप मेडिटेशन कर ही नहीं सकते। पहली बात तो मेडिटेशन का जंगल नहीं है। आप बाई द वे कोई जंगल ढूंढ लिया आपने कैसे भी करके, वहां गए, आप वहां बैठे, आप 5 मिनट तपस्या नहीं करोगे, पीछे से म्यूनिसपैलिटी वाले जंगल काटने के लिए आ जाएंगे कि सर यहाँ से हटिए, आप तो अपना ये कमंडल लेके कहीं और जाइए, हमको यहाँ पर बनाना है अपनी फैक्ट्री, है ना। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो बेसिकली सतयुग का प्रोसेस सतयुग में ही चलता है, अभी नहीं चलेगा वो। उसी तरह त्रेता युग आया बाद में, जब भगवान राम आए। त्रेता युग में जो प्रोमिनेंट प्रैक्टिस थी सेल्फ रियलाइजेशन की, वो थी यज्ञ। आपने सुना होगा उसी समय बड़े बड़े यज्ञ परफॉर्म करे जाते थे। आज तो हम यज्ञ भी नहीं कर सकते हैं, हमारे रामदेव बाबा ही मिलावटी घी दे देते हैं। हमने उसको यज्ञ में डाला, अग्निदेव नाराज हो गए तो काम बिगड़ जाएगा। सो दैट इज ऑल्सो नॉट एन ऑप्शन। उसके बाद है द्वापर युग। द्वापर युग जब हमारे भगवान कृष्ण आए, द्वापर युग में जो प्रोमिनेंट प्रोसेस था टिटी वर्शिप, मतलब मूर्ति पूजन जिसको बोलते हैं आप हिंदी में। और अभी जो कलयुग है, तो कलयुग की स्थिति देखते हुए जो प्रोसेस हमको बताई गई है वो है चैंटिंग ऑफ होली नेम ऑफ द लॉर्ड। जिस जिस परिस्थितियों में हम, जिन परिस्थितियों में हम रह रहे हैं, तो अभी के लिए जो बेस्ट प्रोसेस है सेल्फ रियलाइजेशन का, वो है भगवान के नाम का जप करना। ठीक है, बिफोर वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड से हम थोड़ा एक चीज समझना चाहेंगे। देखिए, भगवान का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट हमारे कलयुग में सिर्फ एक हमारा आधार ही यही है। शिक्षाष्टकम में चतुर महाप्रभु बोलते हैं कि नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। हम भगवान के नाम को ऐसे नाम नहीं समझें कि जैसे हमारा नाम वैसे इनका नाम, ऐसा नहीं होता है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, निज मतलब अपनी, सर्वशक्ति मतलब पूरी शक्ति। इस श्लोक में कह रहे हैं वो कि भगवान ने अपनी सारी शक्तियां इस अपने नाम में भर दी हैं। इसका मतलब क्या है, इस दुनिया में सर्वशक्तिमान कौन है, भगवान। तो और भगवान ने अपनी सारी शक्तियां अगर अपने नाम में भर दी हैं, तो भगवान के बराबर शक्तिशाली कौन हुआ, उनका नाम। तो बेशक हम भगवान को नहीं देख सकते, भगवान से नहीं मिल सकते, भगवान को नहीं छू सकते हैं, लेकिन हम जिसको अप्रोच कर सकते हैं, हमारे पास जो है वो है भगवान का नाम। तो होली नेम ऑफ द लॉर्ड इज समथिंग दैट इज वेरी क्रूशियल इन द लाइफ, है ना। आफ्टर यू हैव अंडरस्टूड दैट यूर सोल, अभी आपको धीरे धीरे मैं बताता जाऊंगा। अभी यहाँ से शुरू हो गया है कि आत्मा का भोजन क्या होता है। आत्मा का भोजन आध्यात्मिक होना चाहिए, और भगवान का नाम ही वो आध्यात्मिक भोजन है जो आत्मा को संपन्न बनाता है, जो आत्मा को प्रसन्नता देता है, जो आत्मा को खुशी देता है। आप कितना भी बड़ा घर बना लीजिए, आप कितना भी बड़ी कार में चलने लगिए, लेकिन आप तब तक वास्तव में प्रसन्न नहीं हो सकते, वास्तव में खुश नहीं हो सकते हैं, जब तक आप भगवान के नाम का स्मरण नहीं करेंगे, जब तक आप भगवान का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि यही आपका भोजन है, यही आत्मा का भोजन है ना। आइए देख लेते हैं कि जो बाकी रिलीजन है वो क्या कहते हैं। क्रिश्चियनिटी में क्राइस्ट ग्लोरिफाइड लॉर्ड्स होली नेम बाय सेइंग आवर फादर हु आर्ट इन हेवन, हैलोड बी दाई नेम।
आवर फादर जो जीसस क्राइस्ट थे वो उनको भगवान का सन माना जाता है, ही इज कंसीडर्ड द सन ऑफ गॉड, है ना। तो वो फादर, आवर फादर, वो भगवान के लिए बोल रहे हैं। हु आर्ट इन हेवन, आर्ट, देखिए आर्ट जो है, आर्ट मतलब आर होता है, ए आर ई, उसको पुरानी इंग्लिश में आर्ट लिखते थे। तो आवर फादर हु आर्ट इन हेवन, जो कि हेवन में है, हैलोड बी दाय नेम, हैलोड मतलब होता है प्योर, है ना, प्योर बी दाय नेम, मतलब जीसस क्राइस्ट ने बताया कि भगवान का नाम है वो बहुत शुद्ध है। देखिए भगवान का जैसे हम लोग ये चीज देखते हैं कि हम लोग सब सर्व संपन्न होना चाहते हैं कि नहीं, हम चाहते हैं कि हमें गुस्सा ना आए, हम चाहते हैं कि हम ऑनेस्ट रहें हमेशा, हम चाहते हैं कि हम हमेशा सत्य बोलें, हम चाहते हैं कि हमारे अंदर ये सारी क्वालिटीज आ जाए। तो इसका बहुत, देखिए ऐसी कोई मेडिसिन तो है नहीं मार्केट में कि जिसको आपने खा लिया और आप प्योर हो गए एकदम, आपके अंदर ऑनेस्टी आ गई, आप सच बोलने लगे हमेशा, किसी भी परिस्थिति में आप सत्य का साथ देने लगे। ये सब क्वालिटीज लाना बहुत मुश्किल है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि हम ये बहुत आसानी से कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक स्पेसशिप डिस्कवर की, आपने इन्वेंट की, आपने स्पेसशिप बनाई और आप उसमें बैठे और आप सूरज की तरफ बहुत तेजी से जाने लगे। अभी देखिए जैसे जैसे आप सूरज की ओर बढ़ते जाएंगे, आपकी स्पेसशिप और आपके शरीर के अंदर जो हीट कंटेंट है, जो कि ऊर्जा है, वो अपने आप बढ़ने लगेगी, है कि नहीं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सूरज है वो ऊर्जा का स्रोत है ना, उससे उसकी जितनी ऊर्जा इस दुनिया में है वो उसी से निकल रही है। तो जब उस सूरज के नजदीक आप जाते हैं तो आपके अंदर ऊर्जा बढ़ने लगती है, आपके अंदर हीट कंटेंट अपने आप बढ़ने लगता है, टू द पॉइंट अगर आप ज्यादा क्लोज जाएंगे तो इतना बढ़ जाएगी कि आप जल ही जाएंगे, है ना। तो इसी तरीके से कृष्णा या भगवान, जिनको अगर हम एनॉनिमसली बोले, भगवान हर अच्छी क्वालिटी का स्रोत है। हर जो भी इस दुनिया में अच्छी क्वालिटी आपके दिमाग में आ सकती है, ऑनेस्टी, प्योरिटी, नॉट बीइंग अफ्रेड एट ऑल, जितनी भी आप डिजायरेबल क्वालिटीज आप चाहते हैं अपने जीवन में, भगवान उस चीज का सोर्स है, हर चीज का सोर्स है भगवान। जितनी भी इस दुनिया में अच्छी चीजें हैं, हर चीज का सोर्स है भगवान। तो जैसे जैसे आप भगवान के नजदीक जाएंगे वैसे वैसे आपके अंदर ये सारी क्वालिटी अपने आप बढ़ती जाएंगी। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ? जिस तरीके से सूरज स्रोत था ऊर्जा का, आप उसके पास गए तो आपके अंदर ऊर्जा बढ़ गई, उसी तरीके से भगवान हर अच्छी क्वालिटी का स्रोत है। तो हम अगर उनके नजदीक जाएंगे तो हमारे अंदर अपने आप वो क्वालिटीज बढ़ जाएंगी। इसीलिए आप देखेंगे जो भगवान के भक्त होते हैं उनके अंदर सारी क्वालिटीज अपने आप होती हैं, वो प्योर होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। वो आप उनको कभी ब्राइब कर ही नहीं सकते, है ना। आप वो करप्ट नहीं होते हैं कभी भी। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया का हर सिटीजन करप्ट ना हो, है ना। करप्शन कितना बड़ा प्रॉब्लम है इस दुनिया में, कितना क्राइम बढ़ रहा है, लस्टी हैं लोग। देखिए इंसान के अंदर लस्ट है इसलिए वो रेप करता है, इंसान के अंदर करप्शन, ये ग्रीड है इसलिए वो करप्शन करता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मतलब कि कहने का कि इस दुनिया में जितनी समस्याएं हैं उनके उनका कारण हमारे अंदर की बुराइयां ही हैं। अगर उन बुराइयों को खत्म करना है तो हमको अपने आप को भगवान के नजदीक ले जाना पड़ेगा। और भगवान के नजदीक तो हम ऐसे जा नहीं सकते कि भगवान हमको कहीं दिख रहे हैं तो उनके पास चले जाएं। तो भगवान के जितना ही पावरफुल और प्योर उनका नाम है, तो जैसे ही हम भगवान के नाम के नजदीक जाते हैं तो हम अपने आप प्योर होने लगते हैं, हमारे अंदर अपने आप वो क्वालिटीज आने लगती हैं। इसीलिए अगर इस दुनिया का एक इमेजिन करिए, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि इस दुनिया का हर इंसान भगवान का भक्त बन जाए, भगवान का नाम जप करने लगे, तो अपने आप वो भगवान के करीब जाएगा। भगवान के करीब जाएगा तो उसके अंदर की अपने आप जितनी सारी बुराइयां हैं अपने आप कम होने लगेंगी और हमारे सामने ऐसी दुनिया होगी जो हम चाहते हैं। आप कितना भी पुलिस फोर्स खड़ा कर लीजिए, आप कितना भी मिलिट्री बना लीजिए, लेकिन ये बुराइयां अंदर से कम जब तक नहीं होंगी तब तक कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा था, द पावर ऑफ होली नेम, बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड वी कैन एक्चुअली ऑब्लिटरेट ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव इन दिस वर्ल्ड। After Christianity, we will move to Islam. In Islam also you will see that Islamic people always have that rosary in their hand and they always keep chanting Allah. In Sikhism, also Guru Nanak has recommended the holy name of the Lord. In Buddhism, also people chant of Buddha. इसी तरीके से सनातन धर्म में भगवान के नाम के जप को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है ना। आइए हम देखते हैं कि स्क्रिप्चर्स में ऐसे कौन से श्लोक हैं जहां पर इसका रेफरेंस दिया गया है। तो पहला श्लोक है कलि संतरण उपनिषद से,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडश नाम कलि कल्मष नामनम, नातः परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ऑलराइट, तो इसको आइए हम एक एक शब्द करके समझते हैं। इति, इति मतलब ये, जो ऊपर हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मैं थर्ड लाइन पढ़ रहा हूँ, थर्ड लाइन देखिएगा। थर्ड लाइन में लिखा है इति, इति मतलब ये जो ऊपर मंत्र दिया गया है, इति षोडश नाम, आप ऊपर देखेंगे तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, एक्चुअली ये जो मंत्र है ये 16 नामों से मिलके बना है। 16 नाम है ये, हरे कृष्ण आप इनको गिनेंगे तो देयर 16 नेम्स। तो इसमें लिखा है इति षोडश नाम, ये जो 16 नामों का जो मंत्र है, आगे लिखा है कली कलमश नाशनम। कली मतलब कलयुग, कलमश मतलब इसकी जो बुराई है, और नाशनम मतलब खत्म कर देता है। इति षोडश नाम, ये जो ऊपर लिखा हुआ 16 नामों का मंत्र है, कली कलमश नाशनम, जो कलयुग के जो जितनी भी बुराइयां हैं, कलमश नाशनम, उनको नाश करने की क्षमता है इसमें। वही जो मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा रहा था। नाता परतरो उपाय, नाता मतलब नहीं है, पर तरफ, पर मतलब बोलते हैं ना सुपर से भी ऊपर, सबसे ऊपर। नाता परतरो उपाय, उपाय मतलब होता है सोल्यूशन, इससे ऊपर कोई सोल्यूशन है ही नहीं। सर्व वेदेषु दृश्यते, सर्व मतलब सभी, वेद मतलब वेद, द बुक ऑफ नॉलेज, दृश्यते मतलब उनका ऐसा मानना है। तो इस श्लोक का मतलब क्या हुआ कि ये जो 16 नामों से बना हुआ ये जो मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये इसके अंदर क्षमता है कलयुग के सारे कलमश को खत्म करने की, और इससे ऊपर कोई उपाय नहीं है, ऐसा सभी वेदों का मानना है। ठीक है, इंग्लिश में मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। आफ्टर सर्चिंग थ्रू ऑल वैदिक लिटरेचर, one cannot find a method of religion more sublime for this age than the chanting of Hare Krishna. कलिशंतर उपनिषद। उसके बाद ब्रह्मांड पुराण से ये लिया गया है। नाम संकीर्तन देव तारकम ब्रह्म दृश्यते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। द नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन मतलब जब, संकीर्तन का मतलब मैंने आपको बताया था, जब कई लोग मिलके भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं उसको संकीर्तन कहते हैं। द नाम संकीर्तन ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, जो कि अभी हमने पढ़ा, डिलीवर्स अ कंप्लीट रिवलेशन ऑफ ऑल स्पिरिचुअल रियलिटी। इसमें क्या बोल रहे हैं कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सारे जाके स्क्रिप्चर्स पढ़ लो स्पिरिचुअल रियलिटी जानने के लिए, लेकिन हमारे पास इतना टाइम है नहीं। तो इस श्लोक के अनुसार क्या बोल रहे हैं ये, कि महामंत्र के उच्चारण से, अगर आप महामंत्र का उच्चारण करते रहेंगे तो कंप्लीट रेवलेशन ऑफ ऑल स्पिरिचुअल रियलिटी, वो जो नॉलेज आपको सब कुछ पढ़ के मिलेगा, भगवान के नाम उच्चारण से ही मिल सकता है। सोचिए कितना कितना ज्यादा टाइम सेविंग है। बोलते हैं ना, डोंट डू हार्ड वर्क, डू स्मार्ट वर्क। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड रीडिंग एवरीथिंग, यू कैन जस्ट चैंट द नेम ऑफ लॉर्ड एंड द नॉलेज विल बी रिवील्ड इनसाइड यू। महामंत्र स्क्रिप्चर्स, this is a shlok from Srimad Bhagavatam 12.3.15, 12th canto 3rd chapter 51st shloka, and it says कलेर दोष निधे राजन। फिर से कलयुग की बहुत बेइज्जती की गई है, बेइज्जती क्या की गई है, एक्चुअली है ही ऐसा, ये सत्य बताया गया है एक्चुअली। कलेर दोष निधे राजन मतलब क्या है, कलेर मतलब कलयुग, दोष निधे मतलब कि दोष मतलब कि कमियों से भरा हुआ है। इस कलयुग में कमियां ही कमियां हैं। राजन मतलब हे राजा, ये जो भी बोल रहे हैं वो राजा को बोल रहे हैं, तो उनको एड्रेस करने के लिए बोला गया है। कलेर दोष निधे राजन, हे राजन, ये जो कलयुग है ये दोषों से युक्त है, दोष ही दोष है इसमें। जैसे पुस्तकालय में पुस्तक ही पुस्तक होती हैं, उसी तरीके से इस कलयुग में दोष ही दोष है। अस्ति एको महान गुणा, लेकिन देखिए जब भी कोई भी सेंटेंस बोले उसमें लेकिन लगा दे, है ना। जैसे कोई लड़का किसी लड़की से बोलता है कि मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ लेकिन तुम्हारे साथ रह नहीं सकता, तो लेकिन के पहले का जो भी सेंटेंस है ना वो सब फालतू रहता है। इसका मतलब ये है हमेशा, दिस इज द फैक्ट। इंग्लिश में एक सेइंग है कि एवरीथिंग सेड बिफोर द वर्ड बट इज अ हॉर्स शिट। तो लेकिन के पहले जो भी लिखा गया है या बोला गया है उस पर तो विश्वास करो ही नहीं। ठीक है, तो कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा, यहाँ पर लेकिन लगा दिया गया। इसका मतलब क्या है, जो ऊपर की लाइन थी आप उसको भूल भी जाएंगे तो चल जाएगा काम। क्यों, ऐसा क्यों?
भाई कलयुग में तो इतने दोष हैं, हम इसको अगर भूल जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। ऐसा इसलिए अस्ति एको महान गुणा, क्यों? क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। इतनी बड़ी क्वालिटी है कि ये जो मैंने पहले बताया कि इस कलयुग में दोष ही दोष हैं, अगर आप इसको भूल भी जाएंगे तो भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक बहुत महान गुण है। तो अब क्या महान गुण है आगे बताइए। कीर्तनाद एव कृष्ण से, कीर्तनाद मतलब कीर्तन, एव कृष्ण से, कृष्ण के कीर्तन केवल मात्र से, मुक्त संगत से परम व्रजेत। हम मुक्त संगत से किस चीज से मुक्त हो जाते हैं? मटेरियल बॉन्डेज से। दिस इज द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ कलयुग, है ना। अभी आप देखिए सतयुग में कितना मेहनत करना पड़ता था, हजारों हजारों साल आपको तपस्या करनी पड़ती थी। त्रेता में आपको कितने यज्ञ करने पड़ते थे, और इसमें कितना पूजा करनी पड़ती थी, मूर्ति पूजन करना पड़ता था। लेकिन आपको इतना आसानी से प्राप्त है कलयुग में, सिर्फ आपको चैंटिंग करना, आपको सब हो जाएगा। सच ए नाइस थिंग और नॉट। उसके बाद नारायण संहिता से ये श्लोक है। द्वापर्यैर यनैर्विष्णु पंचरात्रैस्तु केवलै कलौ तु नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि। In the age of Kali, people should simply chant the holy names of Supreme Personality of Godhead. नारायण संहिता में सिंपल सिंपल लिखा गया है कि कलयुग में और कुछ नहीं भी करे तो चल जाएगा, आप सिर्फ भगवान का नाम लीजिए एंड एवरीथिंग विल बी डन। महामंत्र स्क्रिप्चर्स में आगे देखते हैं। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गत अन्यथा। देखिए ऊपर लिखा है हरि नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, 3 बार बोला गया है। कितना एम्फेसिस दिया गया है, मैं नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा। मतलब जैसे कई बार होता है ना कि मम्मी बोलती है कि बेटा जाके ये ले आ, आप अगर बोल दो कि मैं नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, मतलब आप नहीं ही जाओगे। इसी तरीके से जब किसी चीज का रिपीटिशन होता है तो उसका एम्फेसिस दिया जाता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग दैट थिंग इज। यहाँ बोल रहे हैं हरि नाम हरि नाम हरि नाम, यहाँ बोल रहे हैं हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम एव। एव जब एव का मतलब होता है केवल, है ना। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, सिर्फ हरि का नाम सिर्फ हरि का नाम सिर्फ हरि का नाम। कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य था, कलयुग में इसके अलावा कोई गति है ही नहीं, कलयुग में इसके अलावा कोई उपाय है ही नहीं। सिर्फ भगवान का नाम भगवान का नाम भगवान का नाम, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम ही हमारा एक मात्र उपाय है, उसके अलावा कोई उपाय है ही नहीं। In this age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is the chanting of the holy names of the Lord. There is no other way, there is no other way, there is no other way. Chaitanya Charitamrita Adi Leela 17.21. एतवान एव लोकेस्मिन् पुंसां धर्मः परम स्मृतः भक्ति योगो भगवती तान नाम गृह्णादिभिः। Devotional service beginning with the chanting of the holy name of the Lord is the ultimate religious principle for the living entity in the human society. श्रीमद् भागवतम 6.3.22। इसके बाद आते हैं कि ठीक है स्क्रिप्चर्स की बात मान ली, लेकिन भाई साइंस का आजकल इतना बोलबाला है, जब तक वो बोलते नहीं है तब तक हम कुछ मानते नहीं हैं। तो इसलिए हम थोड़ा साइंटिफिक रिसर्च क्या हुई है इस क्षेत्र में, हम ये भी देखेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र, द इफेक्ट्स ऑन स्ट्रेस डिप्रेशन एंड 3 गुनाज, ये इनका थीसिस का नाम था। द हरे कृष्ण महामंत्र इफेक्ट्स ऑन स्ट्रेस डिप्रेशन एंड 3 गुनाज। दिस रिसर्च वाज डन बाय डेविड बी वुल्फ। So let's watch this video. Okay, so as shown in this video,
The experiment was conducted and it was seen that by the chanting of Hare Krishna Mahamantra, there was reduction in anxiety and people were able to control their bad habits even more easily. So just बहुत शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि इस रिसर्च की फाइंडिंग्स क्या थी। इसमें 3 ग्रुप थे। महामंत्र एक ग्रुप था महामंत्र ग्रुप, एक था अल्टरनेट मंत्र ग्रुप जिसमें किसी और मंत्र की चैंटिंग करवाई गई थी, और था कंट्रोल ग्रुप, नॉर्मल ग्रुप। इसके अलावा इसमें रिसर्च के आउटकम्स क्या थे हम देख लेते हैं शॉर्ट में। देखिए ये जो येलो वाली लाइन है ये महामंत्र ग्रुप की है, मतलब इसमें महामंत्र का क्या इफेक्ट था उन लोगों के। तो देखिए डिक्रीज इन स्ट्रेस सबसे ज्यादा महामंत्र ग्रुप में हुआ है, सबसे ज्यादा कंट्रोल स्ट्रेस में उन लोगों को हुआ है जो कि महामंत्र ग्रुप में थे। सिमिलरली डिप्रेशन उनका कम हुआ है जो कि महामंत्र ग्रुप में थे सबसे ज्यादा। और इंक्रीज इन सत्व गुण में किनका, मतलब अच्छी हैबिट्स किसके अंदर ज्यादा आई हैं, जो कि महामंत्र ग्रुप में थे। आप येलो वाला बार देखेंगे सब में ऊपर है वो। मूविंग अहेड, बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग महामंत्र। ये चार्ट है, ये एक्चुअली ग्राफ है जिसमें आपको वाई एक्सिस में दिख रही है ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी, मतलब कि एक पर्टिकुलर, जैसे आपकी आप दिन भर में आपके अलग अलग मूड होते हैं ना, आपका ब्रेन अलग अलग स्टेट में होता है। आप कभी स्लीपी होते हैं, कभी गुस्से में होते हैं, कभी आराम से रहते हैं, कभी दुखी होते हैं। तो इन अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड्स में हमारा ब्रेन जो है अलग अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। तो देखिए आप सबसे नीचे जो है स्लीपी जोन, जब आप सो रहे होते हैं तो ये 3 फ्रीक्वेंसी देता है। उसके आगे ड्राउजीनेस जोन में 8 तक आता है। 8 to 13 जो ये जोन है ये मंत्रा मेडिटेटर की जोन है, जिसमें रिलैक्स्ड अलर्ट जोन रहती है। मतलब आप जैसे आपने देखा होगा, क्रिकेट देखते होंगे अगर, तो महेंद्र सिंह धोनी ही इज कॉल्ड कैप्टन कूल। वो इसीलिए इतना अप्रिशिएट किया जाता है क्योंकि नो मैटर हाउ टफ द सिचुएशन इज, ही इज एबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ, ही इज एबल टू रिमेन काम एंड पॉइस्ड। और इस तरह से उस स्टेट में जो वो डिसीजंस लेता है तो अपने आप सही होते हैं वो। तो हम उसके आगे जो 30 to 18 है वो एक्टिव जोन है, बहुत ज्यादा जब आदमी हड़बड़ी में रहता है, बहुत कुछ करता रहता है। उसके ऊपर हाइपर एक्टिव जोन, पागल हो जाता है उसमें आदमी, वो वाली स्थिति है वो। तो हमारा जो एम है वो है 8 to 13 में रहने का। और 8 जैसे देखिए महेंद्र सिंह धोनी, मैं ये नहीं बोलूंगा महेंद्र सिंह धोनी चैंटिंग करता है, करता होगा नहीं करता होगा आई डोंट नो, लेकिन ही इज स्टिल कूल, ही इज स्टिल काम एंड कंपोज, राइट। तो कुछ लोगों के अंदर ये नेचुरली होता है। अभी कोई जाके धोनी से पूछेगा कि मैं काम मैं आपके जैसे काम और कूल कैसे रहूं, तो हाँ मैं क्या बताऊं इसमें रहेगा, मैं कैसे बताऊं आपको, मेरे को पता नहीं है, मैं तो अपने आप हूँ, ऐसा बोल देगा वो। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक तरीका है कि कैसे हम उस जोन में रह सकते हैं, रिलैक्स्ड अलर्ट जोन में हम कैसे रह सकते हैं, दैट इज बाय द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। मन जैसा कि आपने अभी पीछे जो रिसर्च मैंने आपको दिखाई उसमें आपने देखा कि वो ग्रुप जिसने चैंटिंग की थी उसका ऑलरेडी बहुत रिलैक्स जोन में था, माइंड कंट्रोल था, डिप्रेस कम था, एंग्जाइटी कम थी। ये सारी चीजें अपने आप मंत्र की चैंटिंग, दिस इज द इफेक्ट ऑफ चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, राइट। देखिए 90s के आई थिंक ये मिड 20th सेंचुरी की बात है, 19 जब अमेरिका में हिपीज बहुत बढ़ गए थे। हिपीज वो इट इज दैट क्लास ऑफ पीपल जो कि बहुत रिच होते थे, बहुत अमीर लोगों के बच्चे होते थे, लेकिन ये कुछ नहीं करते थे, ना काम करते थे, धंधा करते थे, ना पढ़ाई करते थे, कुछ नहीं, बस ये ड्रग्स लेते थे और सेक्स करते थे और पड़े रहते थे, और बस इनका यही लाइफस्टाइल था। नहाते नहीं थे, कुछ नहीं करते थे। इनका एम था कि जितना एंजॉय कर सकते हैं हम करेंगे, और इस तरीके से इन्होंने अपनी लाइफ मिजरेबल कर ली थी। इनफैक्ट अमेरिकन गवर्नमेंट अलग से फंड निकालती थी इन लोगों के लिए कि इन लोगों को कैसे अपन बैक टू ट्रैक लाएं, कैसे इनकी लाइफ सुधारें, बट नथिंग वर्क, कुछ काम किया नहीं। लेकिन जब प्रभुपाद गए अमेरिका में, उन्होंने वहां पर हरे कृष्ण महामंत्र इन लोगों को चैंटिंग कराना शुरू किया। एक्चुअली हिपीज वर द फर्स्ट डिसाइपल्स ऑफ प्रभुपाद। प्रभुपाद को पहले इंडिया में प्रभुपाद ने ट्राई किया, किसी ने कुछ नहीं समझा। उसके बाद प्रभुपाद अमेरिका गए तो वहां भी कई लोगों से प्रयास किया तो कोई उनकी बात नहीं माना। लेकिन जब प्रभुपाद ने इन लोगों को प्रेम से समझाया तो ये हिप्पीज ही थे जो कि सबसे पहले चैंटिंग करना शुरू किए। और आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट इमेज में उनके अंदर कितना परिवर्तन आ गया। जो कि सालों नहीं नहाते थे वो दिन में 2 बार नहाने लगे। जो कि हमेशा मदिरा पान करते रहते थे वो प्याज लहसुन भी खाना बंद कर दिए। जो कि दिन भर सेक्स करते रहते थे वो इतने स्ट्रांग हुए अपने आप में कि उन्होंने सेलिबेसी ले ली। वो कभी उन्होंने ये इलिसिट सेक्स करने का कभी सोचा ही नहीं इस तरीके से।
अभी बेनिफिट्स इसके और क्या हैं, देखिए इतना इतना बिग चेंज, तो कहने का मतलब हम अपनी बुरी आदतों में बहुत आसानी से कंट्रोल पा सकते हैं। पिछली स्लाइड का बेसिक मतलब ये था, अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र की जर्नी करते रहते हैं, कई लोग बहुत परेशान रहते हैं कि आदतें ही नहीं सुधर रही, आदतें ही नहीं सुधर रही। अरे आदत सुधरेगी, चैंटिंग तो करिए आप। बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग महामंत्र, फ्रीडम फ्रॉम सिंफुल रिएक्शन। देखिए लोग बोलते हैं आउटर वर्ल्ड में दैट कर्मा इज अ बिच। इस इंडियन फिलोसफी का कुछ फेमस हो ना हो, लेकिन कर्मा ये जो कॉन्सेप्ट है कि आप जो करोगे वो आपके साथ होगा, ये वर्ल्ड वाइड फेमस है। कोई इंडिया का नाम भी नहीं जानता होगा फॉरेन में, लेकिन वो एक चीज जानेगा कि कर्मा होता है भाई, कर्मा लगेगा, एंड दे आर वेरी अफ्रेड ऑफ इट ऑल्सो। तो कार्मिक रिएक्शंस होती हैं, जो आप करेंगे आपको उसका फल मिलेगा, या तो इसी जीवन में मिल जाएगा, और नहीं तो फिर आपको, जैसा कि हमारे स्क्रिप्चर्स में प्रोविजन है कि द सोल इज टेकन टू नर्क एंड देयर इट इज पनिश्ड। नर्क में हमको पनिशमेंट मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एक में जो कि मदिरा पान कर रहा था, जो खूब ड्रिंकिंग करता था, उसको लावा उसको पिलाया जाता है जबरदस्ती, जो कि बहुत अवैध संग करता है, जो कि आउट ऑफ मैरिज सेक्सुअल रिलेशनशिप रखता है, इलिसिट सेक्स जिसको बोलते हैं। उसको एक लेडी विद बर्निंग बॉडी, उससे उसको एम्ब्रेस करवाया जाता है। हाउ पेनफुल इट कैन बी, यू कैन इमेजिन। इसी तरीके से जो कि मांस भक्षण करता है, जीवों को मार के खाता है, किसी और को मार के खाता है, उसको पकौड़ों की तरह तला जाता है। तो ये सब हो सकता है हमारे साथ, और हम जानते हैं हम जिस तरह की दुनिया में रहते हैं, हमसे पाप हो ही जाते हैं, हम ना भी चाहें तो। ये ब्यूटी है कलयुग की कि आप नहीं भी चाहेंगे तो आप पाप करते ही रहेंगे बिना जाने समझे। तो इन सब से हम बच सकते हैं। ये जो हमारा कर्म हमने कर चुके हैं, हम अपने जीवन में जो बुरे काम हम कर चुके हैं, वो खत्म हो सकते हैं। कैसे? बाय चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण। अपने यहाँ ये खत्म होने, चैंटिंग के अंदर ये पावर है कि ये आपके कार्मिक रिएक्शंस को खत्म कर सकती है। यहाँ लिखा लाइक द सीड्स दैट आर फ्राइड इन अ पैन लूज द पोटेंसी टू स्प्राउट। जैसे आप मान लीजिए चने हैं, आप उनको तल दीजिए तवे में, अब उसके बाद आप उनको अगर जमीन के अंदर डालेंगे तो स्प्राउट नहीं होंगे वो, क्योंकि उनके अंदर की वो एबिलिटी चली जाती है। इसी तरीके से जो हम कर्म करते हैं वो बीज बन जाते हैं, जो कि बाद में प्रस्फुटित होते हैं और हमको उसका फल मिलता है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र वो तवे के जैसे काम करता है, जिसके ऊपर वो जो कार्मिक बीज है हमारे, वो अपनी एबिलिटी खो देते हैं और हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। रिलीफ फ्रॉम अनवांटेड मटेरियल डिजायर। देखिए आप हमेशा एक ध्यान देगा कि एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट मैंने सुना था कि अ अनहैप्पी पर्सन विल हैव 100 डिजायर्स एंड अ हैप्पी मैन विल हैव ओनली 1 डिजायर। तो हैप्पी अनहैप्पी आप देखेंगे, पीसफुल अनपीसफुल, ये बहुत अंतर करते हैं। जितना ज्यादा आपके दिमाग में डिजायर्स होंगे ना, आप उतना नाखुश रहेंगे। ये रूल ऑफ द लॉ है ना, ये थंब रूल है लाइफ का। आप इसको हमेशा कि जितनी ज्यादा आपकी डिजायर्स हैं, आप उतना एंग्जाइटी में रहेंगे, आप उतना बेचैन रहेंगे। आप देखिए जो मंकी होता है, बंदर, बंदर हमेशा उसको कुछ पड़ता रहता है कि ये खा लूं, वहां चढ़ जाऊं, वहां कूद लूं, यहाँ खेल लूं, कर दूं। तो आप देखेंगे उसको हमेशा चंचल रहेगा, वो कभी शांत उसको नहीं देखेंगे आप। कभी यहाँ कूदेगा, कभी वहां कूदेगा, कभी यहाँ परेशान रहेगा, कभी वहां परेशान, कभी किसी घर में घुसेगा तो वहां मार खाएगा। लेकिन वहीं देखिए द मंकीज ऑफ मंकी लॉर्ड हनुमान, यू मस्ट हैव सीन हिज पिक्चर। जब भी आप उनकी कभी फोटो देखेंगे तो हमेशा एक पीसफुल पोजीशन में ऐसे करके बैठे रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान के नाम का जप करते हैं। भगवान के नाम का जप करने हमारे अंदर की मटेरियल डिजायर्स हैं बहुत सारी, जो कि हमने पाल रखी जबरदस्ती, है अपने आप कम हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका जल्दी से आंसर बताना चाहूंगा मैं कि अगर आप मिठाई खाने के बाद अगर चाय पियोगे तो आपको चाय पीने का मन करेगा क्या? आपने काजू कतली बढ़िया खा ली है, अच्छी सी शुद्ध एकदम, आपका मुंह एकदम मीठा हो गया। अब अगर आपको चाय देगा भी तो आप उसको उगल दोगे। इसी तरीके से भगवान का नाम जप जप करने के बाद इतना आनंद मिलता है जीव को, आत्मा को इतना आनंद मिलता है कि उसको फिर और कुछ करने का मन ही नहीं करता है ना। इसलिए बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग, जो रेगुलर चैंटर्स हैं, अभी तो मैंने आपको बता दिया कि चैंटिंग करने से होता है। बोले प्रभु जी किसी ने किया है चैंटिंग, अगर किया है तो बताओ उनका क्या कहना है इस बारे में। जैसे हम लोग गूगल प्ले स्टोर में जाकर रिव्यू देखते हैं, तभी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। मूवी देखने के पहले हम लोग रिव्यू लेते हैं, तभी हम मूवी देखते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पर हरे कृष्ण महामंत्र का भी रिव्यू लेते हैं। तो यहाँ पर स्टीफन फार्मर हैं, ये बोलते हैं इफ आई स्टार्ट माई डे ऑन स्पिरिचुअल नोट बाय चैंटिंग हरे कृष्ण आई कैन मेक थ्रू द डे इन प्रेजेंट मूड। बोलते हैं कि अगर मैं शुरू हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग से करता हूँ तो मेरा दिन अपने आप बहुत अच्छा निकलता है। उसके बाद है ये रमेश लाल, टोरंटो हेल्थ स्पा के प्रोपराइटर है, क्या बोलते हैं? चैंटिंग हरे कृष्ण एंड रीडिंग ऑथराइज्ड बुक्स ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस हैज ब्रॉट मी ग्रेट पीस
उन्होंने बोलते हैं कि चैंटिंग करने से मुझे बहुत पीस मिली है। ये आप जानते हैं हेमा मालिनी है, ये क्या बोलती हैं, लेट्स क्रिएट अ मैजिक थ्रू द पावर ऑफ प्रेयर्स, लेट्स चैंट टुगेदर एंड ऑल सफरिंग्स, लेट्स मेक अ वेरी ब्यूटीफुल एंड पीसफुल वर्ल्ड। बोलती हैं कि आइए हम सब मिलकर भगवान के नाम पर जप करते हैं और एक बहुत खूबसूरत दुनिया बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया, भगवान के नाम के अंदर ये ताकत है कि वो हमारे अंदर की सारी बुराइयों को खत्म कर सकती है, करता है। भगवान का नाम हमारे अंदर की सारी बुराइयों को खत्म कर सकता है। और अगर इस दुनिया के हर एक इंसान की बुराई खत्म हो गई, दुनिया अपने आप खूबसूरत बन जाएगी। ये पाउल बियर प्रिंटिंग एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड आउट आई चैंट। जब भी मैं परेशानी में होता हूँ मैं चैंटिंग करने लगता हूँ। इट्स वन थिंग विच चार्जेस माय बैटरी, जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं ऐसे इनके लिए। ये देखिए ये क्यों बोल रहे हैं कि विच चार्जेस माय बैटरी, क्यों? क्योंकि ये फूड है, जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया था कि सोल का फूड है भगवान का नाम। तो इसीलिए ये जो पॉल बियर बोल रहे हैं कि इट इज वन थिंग विच चार्जेस माई बैटरीज, उनको लगता है कि मैं चार्ज हो गया। क्यों? क्योंकि जब वो चैंटिंग करते हैं तो उनको भोजन मिलता है, आत्मा को भोजन मिलता है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं वो। चैंटिंग वेरी कामिंग, हम देख ही चुके हैं कि एंजाइटी कम होती है चैंटिंग करने से। ब्रूस किलबर्ग बोलते हैं, आर्मी ऑफिसर थे, माय आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ इज अ लॉट ब्राइटर आफ्टर स्टार्टिंग द एसोसिएशन हरे कृष्णा डिवोटीज। जब से मैं हरे कृष्ण डिवोटीज के संपर्क में आया हूँ, मेरे दुनिया के प्रति जो मेरा सोच विचार है वो बहुत बदल गया है। लोग बहुत पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, दुनिया अच्छी नहीं है, ये दुनिया बेकार है, सब बेकार लोग हैं, ऐसा आदमी बहुत पेसिमिस्टिक बन जाता है। लेकिन भक्ति में आने से, भगवान के नाम को जप करने से अपने आप आपको दुनिया खूबसूरत लगने लगती है और दुनिया खूबसूरत बनने लगती है धीरे धीरे अपने आप। ये डॉक्टर रोनाल्ड आर्ट्रक के हैं, आपने देखा, हितेश मफतलाल ने भी कहा, चैंटिंग हैज हेल्प्ड माय मी विद ग्रेट कॉन्फिडेंस एंड पीस ऑफ माइंड। है ना? कि देखिए ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, सीईओ ऑफ मफतलाल फैब्रिक्स के सीईओ है। एक बड़ा बिजनेस बनाने में कितनी परेशानियां आती हैं, कई बार आदमी डिप्रेस हो जाता है, कई बार खुश रहता है। तो इस तरह से बोल रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र ने मुझे अपने जीवन में उतार चढ़ाव में बहुत मदद की है। ये आप देखिए जॉर्ज हैरिसन है, जो कि बीटल बहुत बड़ा पॉप बैंड था पहले का, पॉप कल्चर का बहुत बड़ा बैंड था, जिसके एक मेंबर थे, वो गिटारिस्ट थे जॉर्ज हैरिसन। उन्होंने लिखा, चैंटिंग इज रियली अ प्रोसेस ऑफ हैविंग रियलाइजेशन ऑफ गॉड। जैसे मैंने बताया कि भगवान हमको नहीं मिल सकते, हम नहीं उनको देख सकते हैं, हमको नहीं छू सकते हैं, लेकिन भगवान को अप्रोच कर सकते हैं भगवान के नाम के रूप में। अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो इट इज एज गुड एज बीइंग विद गॉड, इट इज एज गुड एज एसोसिएटिंग विद गॉड। एल्फ्रेड फोर्ड हैं सीईओ, आपने फोर्ड मोटर कंपनी का नाम सुना, फोर्ड की कार आती है, उसके सीईओ हैं, ये बोल रहे हैं, आई स्टार्टेड चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र ऑन माय बीट्स एंड स्टडिंग बुक्स, चैंटिंग लॉर्ड कृष्णाज नेम चेंज्ड माय लाइफस्टाइल। उन्होंने बोला मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया जब से मैंने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया है कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में और हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करने लगा हूँ बीट्स पे। तो इस तरीके से हरे हरे कृष्ण मंत्र के पहले हम ये मंत्र पढ़ते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। और शॉर्ट बताऊंगा ये क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके पिताजी ने आपको पेट्रोल पंप बना के दिया, ठीक है, पिताजी चले गए। अभी आप जब भी रोज पेट्रोल पंप, आप जानते हैं कितनी कमाई करते हैं पेट्रोल पंप वाले इस समय। तो जोक मिलता है कि लड़की पूछती है क्या करते हो, तो लड़का बोलता है कि मेरा तो पेट्रोल पंप है, तो इमीडिएटली शादी के लिए तैयार हो जाती है। तो इस तरह की स्थिति है। तो फॉर एग्जाम्पल, आपके पिताजी ने आपको पेट्रोल पंप बना के दिया, चले गए पिताजी। अभी अब आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है उस पेट्रोल पंप से, तो ये तो आप रियलाइज कर ही रहे हैं। तो इसीलिए आप जब भी अपनी पेट्रोल पंप सुबह खोलेंगे तो आप थोड़ा सा अपने पिताजी को भी याद कर लेंगे, उनकी फोटो के आगे अगरबत्ती लगा देंगे, है ना? तो जब हमारे पूर्वज हमको कुछ बहुत ही कीमती देके जाते हैं तो हम उनको याद करते हैं। इसी तरीके से हरे कृष्ण महामंत्र जो हमारे तक पहुंचा है, वो कई संतों की मेहनत करने के बाद पहुंचा है। देखिए चीजें लुप्त हो जाती हैं अगर उनको, अगर अच्छे तरीके से प्रचारित न किया जाए, लोगों तक न पहुंचाया जाए। जैसे ये हरे कृष्ण महामंत्र है, अगर अगले 50 साल तक इसके बारे में कोई बात नहीं करता है तो ये लुप्त हो जाएगा, इसके बारे में कोई नहीं जान पाएगा। आगे आने वाली जनरेशन इस चीज से विलुप्त हो जाए, मतलब इस चीज से डिवॉइड हो जाएगी, उसको मिलेगी ही नहीं ये चीज। इसीलिए जो जिन संतों ने हम तक ये भगवान का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र हम तक लाया है, हम उनको धन्यवाद करते हैं भगवान का नाम लेने से पहले। और ये इस मंत्र में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, इनमें ऐसे ये आपको फोटो दिख रही है, ये 5 संत हैं जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है भगवान का नाम हम तक लाने में। इसीलिए भगवान का नाम का उच्चारण करने से पहले हम इनको धन्यवाद देते हैं, इनका नाम उच्चारण करके, इस मंत्र का उच्चारण करके। और उसके बाद
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र है। इसमें लिखा है चैंट एंड बी हैप्पी। देखिए, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, आत्मा का भोजन आध्यात्मिक होना चाहिए। इस भोजन को प्राप्त करके ही आत्मा, मतलब मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं जो कि आत्मा हूँ, मैं तभी प्रसन्न हो सकता हूँ जब मुझे आध्यात्मिक भोजन मिलेगा। और यही वो आध्यात्मिक भोजन है, हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए लिखा है चैंट हरे कृष्ण महामंत्र एंड बी हैप्पी। क्योंकि जब आपको भोजन मिलेगा, आप आत्मा को भोजन मिलेगा, आपको भोजन मिलेगा, तो आप अपने आप प्रसन्न हो जाओ। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Prabhu, for giving this wonderful class. And I hope all of our members has enjoyed this session. So let's take up some few questions. Yes, we will share Prabhuji's contact number and mail ID very soon. Now, if anyone having any kind of question, they can share in the chat box, and Prabhu will definitely going to answer you. And first of all, tell me how you like the session and our traditional with a delighted heart, Hari Bol with a smiling face. Hari Bol, quickly. Oh, so many Hari Bols. Prashant, Sumuk, Dipti. Oh, it was an amazing session. Definitely. Superb. Shivansh is saying superb. Okay, so many Hari Bols with a smiling face. Now, time come for questions. Now, if anyone having any kind of question, they can write in the chat box and we will definitely going to entertain that question. Thank you, Manu. Thank you, Jagrati. So many Hari Bols for this very wonderful session. Thank you very much, everyone. I'm very happy that you people enjoyed it. So there is no question. Okay. Then we will conclude here. And I hope Prabhuji gave such a wonderful session that there is no question. Hare Krishna, Gurudev. Oh, Okay. There is one, I guess. Yes. Who is this? Hare Krishna, Gurudev. Yes, प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। आप पूछ सकते हैं अपना प्रश्न। शिवांश प्रभु हैं शायद। यस, पूछिए। गुरुदेव, आपके जीवन के कोई भी 3 अनुभव हमें बता दीजिए प्लीज। मतलब अनुभव किस क्षेत्र में? नहीं, अनुभव तो आपने बहुत मतलब जीवन में कोई भी अनुभव लिए होंगे, तो कोई भी 3 अनुभव। देखिए, मतलब मैं आपको जो सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, मेरे जीवन का जो सबसे अच्छा हिस्सा रहा है, वो शुरू हुआ मेरे कॉलेज में जाने के बाद। कॉलेज में जाने के बाद अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस के संपर्क में आया। मैं इतनी अच्छी, पहले मैं बता रहा हूँ, मेरी फिलॉसफी थी नहीं कुछ लाइफ की। आई वॉज कम्प्लीटली डायरेक्शनलेस। मतलब जो मन पड़ा करने लगे, कुछ समझ में नहीं आता था कि करना क्या चाहिए, सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन ये जो फिलॉसफी जो आपको डिवाइस के थ्रू मिल रही है, ये जब मेरे को मिली थी, मैं फर्स्ट ईयर में था अपने कॉलेज के। उसके बाद उसके बाद सब कुछ सेंस बनाने लगा, सब कुछ समझ में आने लगा कि अच्छा ये हो रहा है तो ये अच्छा इसलिए हो रहा है, अच्छा ये ट्रेडिशंस क्यों हैं, अच्छा इसलिए। तो आप हमेशा एक ध्यान रखिए, व्हेन द गोल गोज हेजी, थिंग्स गो क्रेजी। जब भी आपके जीवन का उद्देश्य आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा ना, तो सब बिगड़ने लगता है। आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ जाना है, सही रास्ता कौन सा है, गलत रास्ता कौन सा है, कौन सी रोड लेनी चाहिए, कौन सी रोड नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे सबसे पहला काम जो इंसान को करना चाहिए, किसी भी तरीके जीवन का उद्देश्य अपना क्लियर करना, स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों। तो वो जो ये सेशन आप लोग अटेंड कर रहे हैं, इसके माध्यम से आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। वो जब मेरे को समझ में आया, तो मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई। और ये जो की कॉन्सेप्ट था, दैट वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर सोल, दैट एक्चुअली इम्पैक्टेड मी अ लॉट। इसने बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट किया मेरे को। थैंक यू शिवांश फॉर योर क्वेश्चन। थैंक यू, गुरुदेव। I'm not Gurudev. You don't have to call me that. You can call me Pradyumna. My name is Pradyumna. Okay. Is there anything else?
Yes, what do you have to do now? Oh, so Prabhu, you can share your mail ID or contact number in the chat box so that if anyone having any doubt, personally they can contact you. All right, over all right. there. So I'll write it down here. Okay. And thank you so much, Prabhu, for giving this wonderful session. We are very delighted and feeling very jubilant after getting the knowledge of chanting Hare Krishna Mahamantra and having realization like what benefits we can get from this chanting of Hare Krishna Mahamantra. And we got so many scriptures references. They are mentioned there like for this particular age in which we are facing distress, anxiety, and so many things. This simple Mahamantra carrying only 3 words and arranged in a very wonderful pattern Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. We're definitely going to benefit us. So now you can ask all the personal questions on the contact. Prabhu shared his mobile number and Gmail ID. And again, we are Okay, very I thankful think for I, Prabhu I I for think sharing. I've sent it to you, just to you. Okay, let me write it again. Okay. Thank you so much, Prabhu, for giving this wonderful session.